Recently, with due apologies to the director here, please, I'm not doing any harm. Recently, the government changed your education policy in 12 hours. Suddenly, we got a message in the morning that your online classes will be for 1 hour. I don't take the credit, but I think very few of us approached the government, and today the government has changed and agreed to whatever the reasonable timing for online classes are going to be. That is because we brought it to the government's notice that you can't do this, we can't do it. And government agreed, and we have sort of agreed with our viewpoint. What I've learned visiting various schools has always been in education during these years. I'm very grateful that you listened to me for such a long time. I'm sure everybody will say that you're taking too much of time. I have a lot to say, but lastly I'll tell you, if you're not together, you're nobodies. If you don't understand what tomorrow is ahead of you, believe me, you are nobodies. Just get rid of this impression. मैं अपने डायरेक्टर साहब की तरफ से ये मेरी एक दावत थी, जिसे आप जब भी चाहें, जो भी इनोवेटिव स्टूडेंट आपका होगा, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है हमारी लैब में, या हमारी लैब्स को इस्तेमाल करना चाहता है, या हमारी खिदमत जो है वो लेना चाहता है, वो हमेशा हमेशा आपके लिए मैसर होंगे। हम कभी भी ये नहीं देखते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल से आया है या ये गवर्नमेंट स्कूल से आया हुआ है। रही बात, पहले इसी को निभा लेते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा तसद्दुक़ साहब से, मेरी बदकिस्मती आपसे तारुफ नहीं है, मैं अशरफ हूँ, हंदवाड़ा से हमारा ताल्लुक है। So that I have been in Saudi Arabia for some time. Then when I came back, I organized a program, Inspire, PM's Inspire program for the bright students of Jammu and Kashmir. So I have been connected with you. I have been inviting one whole day talk on equity of education. But जैसा कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जब तक शमा मेरे पास आई कुछ बुझी बुझी सी लगी, यानी साहिर होने लगी थी। तो अब मुझे टाइम आपका मैं ज़्यादा काम नहीं लूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। ये तसद्दुक़ हुसैन साहब का करम है कि उन्होंने निजी स्कूल्स, निजी मदारस और पब्लिक स्कूल्स या अवामी मदारस या सरकारी मदारस, गवर्नमेंट स्कूल्स का एक ही अपनी दोनों आँखों से एक तरह देखा है। अल्लाह करे इसमें जो थोड़े बहुत डिस्क्रपेंसीज हैं जिसका जिक्र वार साहब कर रहे थे, because I have gone through a book, Knowledge is Power by Alvin Toffler. In the early days, the person who was having the most human resources was to be considered as the powerful person of that era. And with the passage of time, it changed to weaponry. The person, the kingdom, the country which was having the most weaponry was considered to be the most powerful. जैसे वार साहब ने कहा, हमारे आपसों में फाइलें होती थी कुछ अरसे से। I tried my best. I tried to do a little bit by clearing those files. And Alhamdulillah, 80% of the files I have cleared of private schools from my office. And we are requesting for the PRO. I am the PRO of private schools. I need not to appoint anybody else. I am myself PRO of your schools, using of these files. And let me put it on record that if any of the private school is having any difficulty vis-a-vis registration or vis-a-vis conduct of exam, I will be there
for his service at any point of time. Thank you very much. Thank you. Personality, and they have to understand that which profession they have to adopt in future after their secondary education when they are going to complete from the schools. So really great efforts actually by the private school associations to organize this one-day seminar. Certain things I have watched actually since a long time, because I am now working. I was working actually as a professor in Aligarh Muslim University, and I have seen the performance of the student from the Kashmir Valley particularly, and the school education I understand is better than the other places in the northern India, in Jammu and Kashmir, because your students basically they can communicate very well in English and they are quite intelligent also. सर उसका कोई फायदा है नहीं. वी विल गो फॉर साइंस फेयर. उसके लिए मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो NIT के साथ, और अब हम वाइस चांसलर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सर आपका प्रोडक्ट स्कूल से ही निकलेगा. तो हम चाहेंगे कि एक इस तरह से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो ताकि हमारे बच्चे कल के साइंटिस्ट हों. थैंक यू. अब है इनको इतनी फिक्र पड़ी है हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज की कि इनका जो अपना नाला है ये वहाँ से शुरू करना चाहते हैं. मैं इनको बहुत मुबारकबाद करता हूँ. इनकी जो एफर्ट्स इस मामले में है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ. आज हम पहली बार हमें अपने ऑनरेबल चीफ गेस्ट से मौका मिला इनके साथ बात करने में, तो कितनी बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, कलेक्टिव एफर्ट्स. जहाँ पर भी कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं we will have the wonders. वहाँ पर अजीब अल्लाह ताला की मदद आती है. उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, इखलास. जब तक हमारे when we have got good intentions, आज यहाँ पर हमारे वार साहब ने कहा कि we will not have these exhibitions and all that, but यहाँ पर जो बहुत important चीज़ है जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ये मैसेज, we have got lot of environment.
आज का सेमिनार का मकसद जो है ये 21st सेंचुरीज़ में जो है जो चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन में, तो उसको चैलेंजेस को किस तरीके से हैंडल किया जाए और मॉडर्न टीचिंग मेथडोलॉजीज़ क्या हैं, मॉडर्न जो करिकुलम है वो किस टाइप का होना चाहिए। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो बन गई है, वो कब इम्प्लीमेंट होगी, कैसे इम्प्लीमेंट होगी, और वो टीचर्स जो ऑलरेडी इन टीचिंग प्रोफेशन उनके लिए क्या करना होगा, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, ये तमाम चीज़ों पर मैंने इज़हार ख़याल किया है। और इसके अलावा जो बहुत ही अहम चीज़ मैंने आज की है वो है साइंस फेयर का इनेकाद, और साइंसी नुमाइश को खैराबाद कहना है हमें। यानी इंस्टेड ऑफ having science exhibition, we should promote science fair, which is responsible for creative mind and critical thinking of the students. So that is most important. So my slogan is say yes for science fair, say no for science exhibition. आज जो इवेंट था ये अगर फ्यूचर ऑफ एजुकेशन पे है तो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन अब कम्प्लीटली चेंज्ड ओवरहॉल होगा, और जो 21st सेंचुरी की एजुकेशन है वो अब फिज़िक्स केमिस्ट्री में मैथ्स में ही नहीं महदूद रहेगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन चीज़ों में आएगी। ये चीज़ें हैं आज के मज़मून इसी पे था कि हम कैसे इसको आगे चलाएं और कैसे हम हमारे जो बच्चे हैं बहुत ही ज़हीन हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत ही उनकी तारीफ़ें थ्रू आउट द वर्ल्ड है आज, और यही बच्चे हैं जो कल मेरे ख्याल से नया कश्मीर लाएंगे। इस इवेंट का मकसद था बच्चों तक अच्छी तालीम पहुंचाना। मेरा मकसद यही यहाँ आने का यही था कि मैं भी अपनी बात रख पाऊँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पे कि जो भी बच्चे हैं उनको सबसे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, और जो भी इनके मसाइल हैं प्राइवेट स्कूल के उनको उनके मसलों का इजाला करने के लिए मेरा बड़ा अहम रोल रहेगा। आई विल बी देयर विद देम subject to the conditions that we provide a best and good quality education to all the stratas of society. आप सिलेबस के हिसाब से अगर बोलेंगे तो we have relaxed 30% of the syllabus to in the examinations. और जो मैंने आपको कहा कि जो we had started a blended way of imparting education to our students by way of conducting Zoom classes, then LMS through LMS, then through tele classes, then radio classes, community classes, and now we are doing 10th and 12th practical classes and some capsule and short courses to overcome their learning gaps. आज क्वालिटी एजुकेशन एंड चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी पे कॉन्फ्रेंस हमने रखी, क्योंकि पिछले 2-2.25 सालों से जो हमारे स्कूल बंद रहे और इस वक्त भी मैक्सिमम क्लास अभी तक बंद हैं, सिर्फ चंद क्लासों को लिमिटेड छूट दी गई है। इसमें जो लर्निंग लॉस हो चुके हैं, अब हमारे बच्चे कैसे कम्पीट कर पाएंगे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात है कि बच्चों में जो एटीट्यूडनल चेंज आई हैं, बिहेवियरल चेंज आई हैं, क्योंकि देखिए स्कूल सिर्फ पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं होता, स्कूल में एक ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, उसमें उनकी मेंटल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट। अब सीधी सी बात है, जब जो है हमारे स्कूल बच्चों से खाली रहे, हमारे बच्चे स्कूलों से दूर रहे, तो स्कूलों में जो बच्चों को पीयर ग्रुप से इंटरेक्शन होती है, टीचर से इंटरेक्शन होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है, मैनर्स की भी, हर चीज़ की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, तो वो नहीं हो पाई। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे जो बच्चों में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो पैदा हुई है उनको एड्रेस करने के लिए हमने एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बाहर से भी लोग आए थे, यहाँ के भी स्कॉलर्स थे, ऑनरेबल वीसी साहब ने आज उसको प्रेजाइड भी किया। तो हमारी कोशिश यह है कि किसी तरह से हम बच्चों को जो लर्निंग लॉस हुई है, जो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लर्निंग लॉस हमेशा दुगना होता है, यानी अगर 10 दिन भी स्कूल बंद होते हैं तो 20 दिन का लर्निंग लॉस होता है। इसको कैसे कम किया जाए,
कैसे हम बच्चों को उस लेवल पे ला सकें, ये चूँकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसी पे बात हो रही थी। दूसरी बात, इन दिनों चूँकि अब ऑनलाइन ऑफलाइन का मामला जहाँ तक है, अब तो हाइब्रिड मॉडल में ही स्कूलों को जाना होगा, इस ताल्लुक से भी जो बात हुई। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि किसी तरह से हम अपने बच्चों को जो इनमें खामियां रही हैं उनको दूर करने की कोशिश करें।